फिर से स्टार्टिंग में एक दो छोटे रिजल्ट्स देखेंगे जो आगे प्रॉब्लम में यूजफुल है वो। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज यू कैन टेक फर्स्ट क्वेश्चन, इफ r bar equal to xi plus yj plus z, then some small results, that is first, what is gradient of, that is divergence of r bar. This is small result. And second, curl of r bar. ये इसके क्या रिजल्ट्स है, क्या आंसर इसका, डाइवर्जेंस ऑफ आर बार। ये अंडरस्टूड है, आर बार जो है आपका ये दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। अब डाइवर्जेंस ऑफ आर बार क्या में वर्ड में लिखा हुआ है, इसको सिंबल में क्या लिखेंगे, और डेल डॉट आर बार, डेल के साथ डॉट अगर है और उसके बाद कोई वेक्टर है, दैट इज डाइवर्जेंस। ओके, यहां पर क्या रहेगा, क्रॉस के लिए कर्ल कीजिए क्रॉस, तो डेल क्रॉस आर बार। So see the results of these two, so divergence of r bar and curl of r bar. Now solution. First of all, you go through proper definition of this differential operator, vector differential operator. So I take this one. So first, del dot r bar, that is divergence of r bar. Now write definition of the del operator is I del by del x, j del by del y, and k del by del z, and into r bar, not into r bar, but it is dot. Now r bar, in place of r bar you put xi plus yj plus zk, xi plus yj plus zk. Now you know I dot I is 1, so therefore del x by del x, right? So del x by del x. J dot j is 1, k dot k is 1, and all others are 0. So j I dot I 1, that will del by del x of x. That is partial derivative of x with respect to x. Same thing. Similarly for y. So del y by del y and del z by del z. So del x by del x is 1. So this is 1 plus 1 plus 1, and that is 3. So keep in mind always divergence of vector r bar is 3. Divergence of vector r bar is 3. या ये शो दैट करके भी पूछ सकते हैं, पूछेंगे नहीं क्योंकि these are the small result. तो divergence of r bar is 3. Now what about curl of r bar? तो सेकंड, पहले इसको आप उतार लेंगे अच्छे से, तो इसको हम उतार लेंगे कि divergence of r bar is 3. Simple. Now second, यहीं के यहीं मैं करने जा रहा हूं कर्ल, तो दिस इज कर्ल मतलब क्रॉस। सेकंड, कर्ल ऑफ r bar, here cross. Now don't write this I cross I, right? I cross I. This is the cross product of two vector, and cross product of two vector is again a vector, and that is nothing but determinant. Keep in mind determinant, because after simplifying this determinant you will get vector, and cross product of two vector, del is the differential vector differential operator, that is it is vector, and r bar is obviously vector, the position vector. Now in the first row you write ijk, and in second row coefficient of del, that is component of del, that is coefficient of ijk. So del by del x, del by del y, and del by del z. And third row component of r bar, that is coefficient of x, y, z. Now evaluate this determinant. So I, you see, delete this column. Now you see del z by del y, del z by del y, del z by del y minus del y by del z, minus del y by del z, then minus j. Now we delete this del z by del x, del z by del x minus del z, del x by del z, so del x by del z. Okay, and plus k, this is so del y by del x, del y by del x minus del x by del y, minus del x by del y. And you see
XYZ are the component along x-axis, y-axis, z-axis. That means they are independent, and derivative of independent variable with respect to independent variable is 0. So this is I0 minus J0, and this is K0, and that is 0. So keep in mind, curl of position vector r bar always 0, right? So that is always 0. So this is the small result. We will use these results often, very often, in solving the further problems. Now from this, after this portion, we are start very beginning this chapter. Now from today, you will see I don't use in further problem the systematic definition of del, that means by writing I del by del. तो मैं इसके बाद में ये जो है del, ये definition कभी यूज नहीं करूंगा. This is now here the proper way is completed because we have all the required results, properties and other things. Now a very important things अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ वेक्टर की आइडेंटिटीज है जिसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता, फिर भी अपन इस चैप्टर के कंप्लीशन में अपन उसका प्रूफ देखेंगे. अभी आपको उस आइडेंटिटीज को याद रखना है. वो आइडेंटिटीज आपको बहुत ही फास्ट आंसर देंगी. अगर आपने आइडेंटिटीज यूज नहीं किया तो आपको पता चलेगा कि उस प्रॉब्लम को 3 या 4 या 5 पेज भी लग सकते हैं. बहुत लिखना पड़ता है. बहुत लिखना पड़ता है मतलब आपको डेल को फिर ऐसा लिखना पड़ेगा और वो फिर सिंप्लीफाई, इट टेक्स मच टाइम. ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे और हमको प्रॉब्लम को देखना है अच्छे से कि क्या यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है. यहाँ जितने भी प्रॉब्लम में लिखूंगा सभी में आइडेंटिटी अप्लाई होने वाली है. तो आइडेंटिटी लिखने के पहले एक और मैं एक फार्मूला बताऊंगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो आपने 12th क्लास में देखा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो वो उसका फार्मूला मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ आइडेंटिटीज याद रखने में आसानी होगी. So that is this. Now vector triple product, vector triple product. ठीक है, मतलब there are 3 vectors and उसका product. तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो जैसे let A bar, B bar and C bar are any 3 vectors, then their triple product, then their vector triple product, then their vector triple product is denoted by like this, A bar cross. इसको आपको ब्रैकेट में रखना है. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ पर कितने भी वेक्टर होंगे, 3 हो गए या 4 हो गए, मगर हमारे को जो भी हमको स्केलर प्रोडक्ट यूज करना है या क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें यहाँ पर 2 ही वेक्टर होंगे, only 2 vectors, we require 2 vectors. So just like if there are 3 vectors, any 2 vector you treated as a combined vector, and you know cross product of 2 vector is again a vector, so you treat it as a new vector, b cross c, and then A bar is other vector, and because this is the requirement of dot and cross product, that's why I am taking here bracket. You can take A cross B cross C also. A cross B you can take in a bracket and C is separate. तो अब ये हो गया. अब इसका हमको एक नोट लिखना है. देखो, अगर मैं तुमको 3 वेक्टर देता हूं तो वेक्टर क्या रहेंगे, IJK के फॉर्म में. और इसको यदि मैं सॉल्व करने के लिए बोलता हूं तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, B क्रॉस C, मतलब डिटर्मिनेंट. B क्रॉस C बोलो तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, बोलो तो डिटर्मिनेंट IJK, and second row component of vector B and third row component of vector C. फिर उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. You will get a vector B cross C. फिर उसके साथ फिर से क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब फिर से डिटर्मिनेंट, किसके बीच में, ये वेक्टर और ये वेक्टर. इट टेक्स मच टाइम. तो ऐसे समय में यदि आपको फास्ट सॉल्व करना है, इसका आंसर तो वेक्टर में आएगा बिकॉज दिस इज वेक्टर
and cross product is vector, again cross product vector, so you will get the answer of this vector in terms of vector, मतलब IJ की। तो वो पूरा कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझाने के बाद एक आइडेंटिटी आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो देखो A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार, अगर आपको यदि डिटरमिनेंट यूज नहीं करना, क्योंकि इसका आंसर लाने के लिए आपको 2 बार डिटरमिनेंट यूज करना पड़ेगा, एक बार यहाँ और एक बार इसके लिए, ठीक है। मगर ये आपको जल्दी आंसर देगा विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट। तो व्हाट इज दैट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निक याद रखेंगे। ए के साथ सी, फर्स्ट ए मतलब यू डिस्ट्रीब्यूट ए ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल सी, फार्मूला इज ए बार डॉट सी बार, दिस इज डॉट प्रोडक्ट इज सिंपल, स्केलर प्रोडक्ट इज सिंपल, क्रॉस प्रोडक्ट मींस डिटरमिनेंट। तो ए बार डॉट सी बार बचा क्या, बी, तो इसको लिखेंगे इनटू बी बार, दिस इज द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, नो डॉट एंड नो क्रॉस, दैट इज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो फार्मूला देखो ए बार डॉट सी बार बचा बी बार, अब लेंगे हम माइनस, अब इसका इसके साथ हो गया तो अब क्या हो जाएगा ए बार डॉट बी बार, तो ए बार डॉट बी बार, अब बचा क्या सी बार। तो ये समझ में आपको आ गया होगा बहुत जल्दी कि ये कैसे आपको याद रखना है कि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी, क्योंकि आप ए बार डॉट सी बार इजीली निकाल सकते हो, मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज सिंपली, और उसका हमारे पास में फार्मूला भी है ए बार डॉट बी बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, दैट इज a1 a2 a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, वो जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार, देयर इज नो क्रॉस, ओनली डॉट। तो कीप इन माइंड दिस फार्मूला, तो इसको आप लिख लेंगे। अब इसके बाद अपन वेक्टर आइडेंटिटी लिखते हैं, आपको याद कैसे करना है उसको, क्योंकि अभी उसका प्रूफ देखेंगे, प्रूफ नहीं आता, तो यहां लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी, वेक्टर आइडेंटिटी। तो फर्स्ट मैं वर्ड में भी लिख के दूंगा और उसको सिंबल में भी लिख के देंगे, पर सिंबल में याद रखना ज्यादा अच्छा है। तो सी वर्ड फर्स्ट identity is very simple to remember. So first of all I write in word, so divergence of, I take phi into vector u, you see here, so divergence of phi is scalar and u bar is vector। अब इसका डाइवर्जेंस का फार्मूला कैसा होता है देखेंगे, which is equal to just like product rule, slightly different, first as it is into divergence of u bar, ठीक है, इतना तो याद हो जाएगा आपको, फर्स्ट into divergence of u bar, थोड़ा यहां पर ध्यान देंगे प्लस प्लस। अब डाइवर्जेंस ऑफ u, अब डाइवर्जेंस किस पे अप्लाई होता है, वेक्टर पे, डेल डॉट, डेल डॉट है तो वेक्टर चाहिए, डेल क्रॉस तो फिर भी वेक्टर चाहिए। अब ये u बार वेक्टर है तो यहां हम डाइवर्जेंस लिखेंगे, फिर बाद में इसको मैं सिंबल में कैसे लिखते हैं वो आपको बताऊंगा। अब चांस आ रहा है फाई का, पर फाई क्या है, स्केलर, तो स्केलर जब रहता है तो वेक्टर ऑपरेटर डेल जो है वहां कोई डॉट नहीं रहता और कोई क्रॉस नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्रैड फाई, ओके, या डेल, सिंबल में आपको और आसानी से समझ में आएगा, ग्रैड फाई ऑफ डॉट यू बार। क्यों यहां पर डॉट आ रहा है, क्योंकि ग्रैड फाई भला ही फाई स्केलर है मगर ग्रैड फाई वेक्टर होता है, हमने कुछ प्रॉब्लम देखा वेक्टर, और यू बार भी वेक्टर, तो उसके बीच में क्या आएगा यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसी को सिंबल में देख लो, सिंबल में डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस, तो डेल डॉट फाई वेक्टर यू। अब लिखो इसको सिंबल में, आपको मैंने बताया था फाई डाइवर्जेंस ऑफ यू मतलब डेल डॉट यू, डाइवर्जेंस डेल डॉट वेक्टर यू, प्लस ग्रैड फाई मतलब डेल फाई, नो डॉट नो क्रॉस बिकॉज देयर इज स्केलर, ग्रैड फाई एंड डॉट वेक्टर यू। समझ आ रहा है ये वर्ड में और ये सिंबल में। अब सेकंड देखेंगे,
ऐसी 4 आइडेंटिटीज है, उसको आपको याद रखना है, पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जितना कुछ बचा हुआ वेक्टर कैलकुलस 1, ये बस ये लास्ट है, और बाकी इसके पहले तो जो प्रॉपर्टीज है फार्मूले तो यूज तो होना ही ऑब्वियसली। अब हम देखेंगे कर्ल ऑफ फाई इंटू वेक्टर यू, ये सेम है स्केलर। डाइवर्जेंस के लिए जो चीज देख रहे हैं वही हम कर्ल लिख के देखेंगे। अब बहुत सिंपल है, डाइवर्जेंस से तो हमने क्या लिखा, डायू, यहां पर क्या लिखेंगे, कर्ल। तो सेम फाई कर्ल ऑफ यू बार, कर्ल ऑफ यू बार, कर्ल मतलब डेल, कर्ल मतलब डेल क्रॉस। अब ये डेल अब किस पे ऑपरेट होगा, फाई पे, ये क्रॉस आप इस सिंबल में देखेंगे, कुछ नहीं आपको क्या करना है, ये ग्रेड फाई सेम टू सेम ग्रेड फाई, क्योंकि यहाँ पर डेल आएगा बाद में, और यहाँ पर डॉट के बदले क्रॉस, डॉट के बदले क्रॉस। देखो सेम फार्मूला आपको दिख रहा है, डाइवर्जेंस है तो डायू, कर्ल है तो कर्ल। डाई हो या कर्ल हो, ये कॉमन पार्ट है ग्रेड फाई, क्योंकि फाई है स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है तो वो ग्रेडियंट ही होगा, डाइवर्जेंस और कर्ल तो होगा ही नहीं। एंड देन क्रॉस यू, इसको सिंबल में देखना है, देख सकते हैं, डेल क्रॉस फाई वेक्टर यू, यस फाई कर्ल ऑफ यू, कर्ल मतलब डेल क्रॉस, कर्ल यानी डेल क्रॉस, प्लस ग्रेड फाई क्रॉस यू, दिस इज। तो इसको आप पहले उतार लेंगे। अब जो तीसरी है और चौथी, बस उसको आपको देखना है, ठीक है। तीसरी आइडेंटिटीज बहुत कम इस्तेमाल होती है, शायद एक दो प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेंगे जिस पर हम तीसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ऑलमोस्ट ये फर्स्ट और सेकंड और जो फोर्थ है, खैर मैं पहले फोर्थ लिखता हूँ, मतलब थर्ड लिखता हूँ, और बाद में फोर्थ जो बहुत कम यूज होगी उसके बारे में लिखेंगे। तो अभी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लॉन्ग है, थर्ड आइडेंटिटीज, यस। तो आप इसको लिख लेंगे, थर्ड। अब हमको देखना है थर्ड, अगेन डाइवर्जेंस ऑफ u बार डॉट v बार, ये इंपॉर्टेंट, डाइवर्जेंस ऑफ u बार डॉट v बार। अब आप सोचेंगे सर डाइवर्जेंस ऑफ u बार डॉट v बार, इसके लिए तो कोई प्रॉपर्टी की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि u बार डॉट v बार क्या है, स्केलर, स्केलर, तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएंगे। अब जब ये स्केलर है तो ये डाइवर्जेंस है तो ये ग्रेड बन जाएगा, क्योंकि ये यस, और ये दो वेक्टर है। अब इसका हमको डाइवर्जेंस पूछना है, डाइवर्जेंस पूछना है, ठीक है। अब इसका जो डाइवर्जेंस आएगा, डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट, डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका आंसर एक स्केलर भी आएगा, क्योंकि ये भी स्केलर ही होता है, u बार डॉट v बार, स्केलर प्रोडक्ट डॉट। तो इसका फार्मूला कैसा क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा सोचेंगे, पहले v, थोड़ा इसको सिंबल में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा है, डेल डॉट u बार डॉट v बार, u बार डॉट v बार, सिंबल में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, u बार डॉट v बार, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, v बार पहले, v बार फर्स्ट, यहां पर आप कुछ नहीं, इसको यहां ला लो, v बार डॉट, v बार डॉट इज मेंटेन, बट हियर डेल बचा क्या, u, तो डेल क्रॉस u, डेल क्रॉस, तो यहां पर u v बार बाहर आएगा, v बार डॉट, एंड यू टेक द कर्ल ऑफ दिस, मतलब कर्ल ऑफ u, v बार पहले, बाद में अगर अब इसका चांस हम थोड़ा सा माइनस लगा लेंगे, माइनस, अब यहां पर क्या रहेगा, u बार डॉट डेल क्रॉस v बार, ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद रखने के लिए। तो अब देखो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर, और उसके बीच में क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर, ये भी स्केलर, दैट मींस टोटल क्वांटिटी स्केलर, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है ही है, तो इसको सिंबल में याद रखो ज्यादा अच्छा है। फोर्थ, ये थोड़ी सी लॉन्ग है, अब देखो डेल के बदले क्या आ गया, क्रॉस, और ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए क्रॉस, ओके, तो डेल क्रॉस, यहां पर क्रॉस नहीं, यहां पर डॉट ही है, यहां पर देखेंगे डेल क्रॉस u बार क्रॉस v, ये प्रॉपर्टी ज्यादातर इस्तेमाल होगी। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, विच इज इक्वल टू,
मैंने आपको बताया था यहाँ पर 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या समझा था आपको? फर्स्ट डॉट लास्ट इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इंटू वेक्टर सी, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। तो ये भी वेक्टर है, दिस वेक्टर यू ट्रीटेड एज ए बी सी, इसलिए तो मैंने आपको ये लिख करके दिया है ताकि यहाँ पर यूज हो जाएंगे। पर केवल इतना ही नहीं रहेगा, यहाँ पर कुछ और है, पर कम से इतना आइडिया तो हमको आएगा। तो देखो यहाँ पर इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो एज्यूम इट इज ए बी सी एंड अप्लाई दिस। ठीक है, तो स्टार्ट। तो डेल डॉट वी, डेल डॉट वेक्टर वी इंटू यू बार, राइट, माइनस यू बार, मतलब यस। अब डेल डॉट वी इंटू यू बार, अब डेल डॉट यू बार, डेल डॉट यू बार, डेल डॉट यू बार दैट इज बी इंटू वी, केवल इतना ही नहीं है, दो टर्म और है, और वो कौन सी? प्लस। देखो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। आप कुछ इसको इंटरचेंज कर लो, ये क्या आपका v, आप इसको इंटरचेंज कर लो, तो ये हो जाएगा v बार डॉट डेल इंटू यू बार। आप सोचेंगे कि सर आपने तो कहा था कि स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, a बार डॉट b बार इक्वल टू b बार डॉट a बार, तो यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही, क्योंकि देखो इसका आंसर अलग आएगा, डेल बाद में है तो ये पहले ऑपरेट होगा, तो आंसर कुछ अलग आएगा, ये अलग रहेगा। तो ये देखो डेल पहले इस पे ऑपरेट होगा, ये दीज आर द डिफरेंट थिंग। ये मत सोचो कि यहाँ पर कुछ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया कि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, नो, बट यू कैन अप्लाई दैट आइडिया हियर, इट जस्ट एज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट इट डजंट सेम। तो v बार डॉट v बार को हम लिखेंगे v बार डॉट डेल इंटू यू, नो चेंज, माइनस जैसा का वैसा इसको भी आप लिख लो, तो क्या लिखेंगे? u बार डॉट डेल इंटू v बार। तो कीप इन माइंड, इसको याद रखो, ये प्रॉपर्टी इसीलिए बताने में आई है। तो दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप उतार लो, इसको वर्ड में लिखने जाएंगे बहुत टाइम लगेगा। वर्ड में क्या लिखेंगे? कर्ल ऑफ वी बार क्रॉस वी बार, डोंट राइट लाइक दिस, यू राइट इन ए सिंबल, ठीक है। वर्ड में लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये वर्ड में आप याद नहीं रख सकते, कर्ल ऑफ याद ही नहीं रख सकते, क्योंकि एबीसी का आइडिया यहाँ पर सिंबल में इस्तेमाल हो रहा है, एबीसी का आइडिया सिंबल में इस्तेमाल होगा, वर्ड में थोड़ी होगा। वर्ड में क्या ऐसा कर्ल ऑफ u bar cross v bar, देखो there you can't remember this easily, you can't this easily, तो कर डेल क्रॉस मतलब कर, राइट, u बार क्रॉस v बार, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? डाइवर्जेंस ऑफ v बार इनटू u बार, नॉट सो सिंपल। भाई कर्ल अचानक डाइवर्जेंस हो रहा है, कहाँ याद रहेगा? कर्ल यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, ये दिस सिंबल इज मेंटेन, दैट्स ऑल। तो डोंट राइट लाइक दिस, डोंट रिमेंबर लाइक दिस, माइनस अगर लिखना है तो लिख लेते, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस ऑफ u बार इनटू v बार। अब यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि इसको हम ना डाइवर्जेंस बोल सकते ना क्रॉस, तो ये एज इट इज रहेगा ऐसा, प्लस v बार डॉट डेल इनटू u बार एंड माइनस u बार डॉट डेल इनटू v बार। तो फिर आधा वर्ड में आधा सिंबल में, डोंट यूज दिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, तो सम प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो आपको क्या क्या याद रखना है? आज का पोर्शन अगर याद रखना है तो सबसे पहले तो आइडेंटिटीज और ये दो रिजल्ट, कौन सा? डाइवर्जेंस ऑफ r बार e एंड कर्ल ऑफ r बार 0। डाइवर्जेंस मतलब डेल डॉट r बार 3 एंड डेल क्रॉस r बार 0, ये मैंने पहले प्रूफ करके आपको दिया है, ठीक। तो चलो प्रॉब्लम लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे रहेगा? इफ r बार इज गिवन, दैट इज
xi plus yj plus zk then तो कुछ ढेर सारे रिजल्ट्स हैं। इक्वल टू आंसर क्या आता है मुझे नहीं मालूम, ऐसा मैं ट्रिक करके चलता हूं। जबकि प्रूव दैट है तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे कि वो पूछना क्या है, डायवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n इंटू r। मुझे नहीं मालूम इसका क्या आंसर है, हम देखेंगे जो आंसर आएगा। ओके, तो डायवर्जेंस ऑफ डेल डॉट मतलब सिंबल में डायवर्जेंस ऑफ डेल डॉट r टू द पावर n इंटू r बार। सेकंड देखेंगे तो मैं क्या लिखूंगा, डेल क्रॉस सेम थिंग r टू द पावर n इंटू r बार। आई डोंट नो, मुझे याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे पास में आइडेंटिटी है, कुछ प्रॉपर्टी है। सी ना अब यहाँ पर पूछेगा कि डेल स्क्वायर r टू द पावर n इंटू r, ये भी पूछ सकता है। डेल स्क्वायर r टू द पावर इंटू r डबल 2 टाइम्स। और देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट, ये तो सिंपल है 1 2 3 एंड डेल स्क्वायर आप r टू द पावर n ही ले सकते हैं, वो भी चलता है r टू द पावर n। तो डेल स्क्वायर r टू द पावर n इंटू r। ओके, यू कीप एज इट इज। ये भी नहीं मालूम क्या है, मालूम नहीं। यस, अब देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, डेल क्रॉस a बार क्रॉस r बार, a बार क्रॉस b बार अपॉन r टू द पावर n। a बार क्रॉस b बार और a बार क्रॉस b बार, सॉरी a बार क्रॉस r बार, तो a बार क्रॉस r बार अपॉन r टू द पावर n। दिस आई डोंट नो। ओके, एक बार n के बदले में 3 करके पूछा था, तो डेल क्रॉस a बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। दैट मींस इन प्लेस ऑफ n देयर इज 3, so this is general. If you remember this, you apply the same procedure by taking n equal to 3 right from beginning. इसका भी नहीं मालूम क्या है। ओके, और देख सकते हैं a b c d e f। अब मैं आता हूं डेल, सिर्फ डेल, दैट इज ग्रेडियंट। ना मैंने डॉट लिखा है ना वहां क्रॉस लिखा हुआ है, तो ग्रेडियंट ग्रेड। यहां पर देखो a बार डॉट r बार अपॉन r टू द पावर n। फर्क देखो, यहाँ पर क्रॉस के बदले यहाँ डॉट है, दिस इज स्केलर एंड दिस इज आल्सो स्केलर, दोनों ही क्वांटिटी स्केलर है करके ये क्या हो रहा है, ग्रेडियंट। अगर उसके पास कोई वेक्टर हो तो फिर ग्रेडियंट होगा, या तो फिर वो डॉट है तो डायवर्जेंस होगा और क्रॉस है तो कर्ल होगा। मगर उसके पास में स्केलर है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है डेल, वो यदि स्केलर पे ऑपरेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ग्रेड। और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन वेक्टर by taking dot product, that is divergence, and cross is curl. And now we start this problem. So these are the some problem, और चाहे तो लिस्ट लिखना है तो आप प्रॉब्लम की लिस्ट लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो A B C D E F और लिख लेते G। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर। अब एफ ऑफ आर विद अननोन नहीं बोल सकते, नोन, बिकॉज आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, थोड़ा इधर लिखता हूं बोर्ड पे लिखा है ना। नाउ ए बी सी डी ई एफ जी, तो डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर, अगेन दिस इज ग्रेडियंट, but this gradient operates on 2 times. The answer is just as f double dash r. Here dash denotes derivative with respect to r vectorially, plus 1 by r f dash r. इस टाइप का रिजल्ट आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर में देखे थे लास्ट ईयर, सेम रिजल्ट था, f dash r f double dash r plus 1 by r f dash r, but that is the differential operator. Here is the वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, नाउ जी, फिर उसके बाद एच। अगर ये रिजल्ट आपको पता है या इसकी टेक्निक पता है या ये रिजल्ट आपको पता है तो आप इस आइडिया को 4 टाइम्स खींच सकते हो। तो डेल का पावर 4। जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व
करूंगा तो मैं इसका यूज करूंगा कि वी नो दैट दिस। अगर इसका यूज करते तो इसका शॉर्ट में आंसर आएगा। इफ यू डोंट यूज टू गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर आप यूज नहीं करते हो तो इट टेक्स मच टाइम एंड 3 to 4 पेजेस। तो यहाँ पर क्या आएगा, e to the power r, e to the power r, वेरी सिंपल टर्म, e to the power r, बट दैट ग्रेडियंट ऑपरेट्स ऑन 4 टाइम्स। तो इसका आंसर e to the power r plus 4 by r e to the power 4 by r e to the power। चलो one by one we solve this problem. These are the some important list. So first I start this. If r bar is this, then divergence of r to the power n। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले आप पता करो कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है और ऑपरेटर क्या है। तो डेल डॉट है, डेल डॉट बोला तो ये डाइवर्जेंस है। r to the power n देयर इज नो बार, बार नहीं है, तो दैट इज इट इज स्केलर। ऑन टर्म विद बार इंडिकेट्स एज ए वेक्टर, तो एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो यहाँ पर भी एक स्केलर है, एक वेक्टर है, यहाँ पर भी एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ये आज तो नहीं होंगे, आज हार्डली है ये 2 प्रॉब्लम या 3 हो सकते हैं। तो ये लिस्ट पहले आप उतार लो, ये लिस्ट उतार लिए, तो उतारने के बाद हम देखेंगे पहला आंसर। मैंने सभी को फिल इन द ब्लैंक्स रखा है, एज ए फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इसका आंसर जो आना है वो आना है, क्योंकि ऑपरेटर फिक्स है एंड टारगेट भी आपका फिक्स है, तो जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन 1, तो सॉल्यूशन 1, तो सॉल्यूशन 1, चलो हम एक ही क्वेश्चन लेंगे या 2। तो फर्स्ट अब हमको सॉल्व करना है डाइवर्जेंस ऑफ r to the power n into वेक्टर r। अब देखो मैंने आपको आइडेंटिटीज लिख करके दिया है, मैं एक बार और रिकॉल करता हूं। आइडेंटिटीज नंबर 1, आइडेंटिटीज आपको याद रखना है। अगर ये आइडेंटिटी याद हो गई तो जल्दी आंसर आएगा। लुक एट द बोर्ड। तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी, डेल डॉट, मतलब डाइवर्जेंस ऑफ फाई इनटू वेक्टर u। आप कंपेयर कर सकते हैं, यहां पर डिफिकल्ट क्या है, कुछ भी नहीं है, ये आइडेंटिटी को याद करो। प्रॉब्लम को देखने के बाद आपको आइडेंटिटी याद आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, नंबर 1 की, क्योंकि नंबर 1 में क्या था, डेल डॉट फाई इनटू वेक्टर u। फाई मतलब स्केलर, यहाँ r to the power n क्या स्केलर, विदाउट बार टर्म इंडिकेट्स एज स्केलर एंड द टर्म विद बार इंडिकेट्स एज वेक्टर, ठीक है। हाँ, तो r to the power n क्या हो गया आपका फाई और r बार क्या होगा आपका u। इसमें क्या लिखा था, फार्मूला क्या लिखा था, फाई डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर u, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर u प्लस ग्रेड फाई, ये क्या है ग्रेड फाई डॉट u। दिस इज द आइडेंटिटी 1। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, क्या फाई है और क्या वेक्टर u है। तो ये फाई है और ये r बार वेक्टर u है, राइट दिस हियर। तो फाई मतलब r to the power n, करेक्ट। ग्रेडियंट सॉरी डाइवर्जेंस ऑफ r बार, कंपेयर करते आ रहा है ना, कंपैरिजन, डाइवर्जेंस ऑफ r बार प्लस ग्रेड ऑफ r to the power n, ग्रेड ऑफ r to the power n डॉट r। समझ आ रहा है ये फाई u बार, दिस इज द आइडेंटिटी नंबर 1 ना। ये इतना जिसने लिखा उसको तो सॉल्व करते आएगा। अब देखते हैं कि हमने क्या क्या रिजल्ट्स निकाले थे। तो r to the power n, देखो मैंने क्या कहा था, डाइवर्जेंस ऑफ r बार 3, डाइवर्जेंस ऑफ r बार 3, तो दिस इज 3 प्लस, अब ग्रेडियंट ऑफ r to the power n, कल का मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने समझा था आपको ग्रेडियंट ऑफ r to the power m प्रूफ के साथ। तो ये क्या लिखा था मैंने, m r to the power m minus 2 into r बार। हर चीज याद होना, लेक्चर आपको सीरियली देखना है, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, दे आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ r to the power m, m is any integer, पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेम थिंग हियर, n मतलब इन प्लेस ऑफ m देयर इज n, दिस इज द नोटेशन। तो क्या होगा इसके हिसाब से, n r to the power n minus 2 into r bar डॉट r bar, ओके, डॉट r bar। एक एक चीज समझते जाओ, समझ में आ जाएगा आपको हर चीज। चलो अब आगे देखते, तो ये हो जाएगा 3r to the power n प्लस, अब फिर से देखो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाया था, ma बार डॉट b बार,
m क्या है? स्केलर. तो यू कैन टेक आउट दिस स्केलर आउट ऑफ देयर डॉट प्रोडक्ट, आउट ऑफ देयर डॉट. तो दिस इज द प्रॉपर्टी. क्यों इस्तेमाल हो रही है यहाँ? आपने देखा स्केलर, तो यहाँ पर स्केलर क्या है? n into r to the power n minus 2. This is the scalar. n r to the power n minus 2 is scalar. That is m. a bar मतलब r bar. Dot b bar मतलब again r bar. So apply this. So you taking common n r to the power n minus 2. That is m. This is m. This is m. So this is common. Now there is a bar, that means r bar dot r bar. R bar dot r bar. Okay, very simple. इसलिए मैंने आपको हर चीज सिस्टमैटिकली लिख करके दिया है. Now simplify 3r to the power n plus n r to the power n minus 2 and r bar dot r bar क्या होता है? r square. मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी लिख के दिया था. a bar dot a bar हमारा आंसर a square आ रहा था. तो a bar dot a bar is a square. That's why r bar dot r bar r square. So this complete answer are 3r to the power n plus n r to the power n. This is r to the power n minus 2 plus 2. That is 2 to get cancelled. And taking r to the power n is common. So r to the power n is common. So answer is 3 plus n. That is n plus 3. That is n plus 3. So this is the answer of first question. तो देखो ये कितना सिंपल तरीके से आइडेंटिटी और छोटे मोटे रिजल्ट्स, डाइवर्जेंस ऑफ आर बार, ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर m जो हमने डिस्कस किया. तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये मैंने अभी देखो इस प्रॉब्लम मैंने कहा भी था कि अब मैं यहाँ पर डेल को कभी ऐसा लिखूंगा नहीं. I don't write this del in this form. इसके बाद मैं ऐसा लिखूंगा नहीं because it takes much time. नहीं लिखेंगे. You go through properties and identity. तो you will get quick answer. अब सेकंड में यहीं के ये मैं सॉल्व करके देता हूँ. सेकंड का क्या आंसर था? तो आपके दो प्रॉब्लम हो जाएंगे. पहले इसको आप उतार लो. पहले आप इसको उतार लिए. चलो सेकंड क्या था? सेकंड आपको पता था, उसने पूछा था क्रॉस, डेल क्रॉस. ठीक है, डेल क्रॉस. तो कुछ नहीं, मैंने आपको कहा डेल क्रॉस. तो जहां जहां डॉट है उसको क्रॉस कर दो. देखो पहले क्या था? डॉट. पहले क्या था? डॉट. और उसने सेकंड क्या पूछा? क्रॉस के लिए. तो रिप्लेस डॉट बाय क्रॉस, रिप्लेस डॉट बाय क्रॉस, रिप्लेस डॉट बाय क्रॉस. सिंपल. ओके. नाउ सी कर्ल. ये क्या हो गया? कर्ल हो गया. सिंबल में पूछा है, मैंने सिंबल में ही लिखा है प्रॉब्लम. ठीक है ना, सिंबल में लिखा है. नहीं तो मैं क्या लिखूंगा? कर्ल ऑफ. इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्ल ऑफ r to the power n into r. Same thing. This is same thing. Curl of r to the power n into r bar. But I have written in symbolic form. Symbol की प्रैक्टिस ज्यादा करो, वो आपको फॉर्मूले याद रखने में आसानी होगी. तो डेल क्रॉस. तो यस, so this is curl of r bar, that is 0. So this part is 0. This part is 0. This is same because gradient here in place of cross. This is 0. This is 0. And here cross. And here cross. And now you see cross product of two vector is 0. So this is 0 plus n r to the power n minus 2. And this is 0 and that is 0. So answer is 0. Curl. You see curl of a bar by a bar cross a bar is 0. A bar cross a bar is 0. So a bar cross a bar is 0 and a bar dot a bar is a square. तो a bar cross a bar, तो यहाँ पर a बार क्रॉस a बार 0 इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रॉस में these two vectors are parallel. तो इन केस ऑफ a बार क्रॉस a बार मतलब आइडेंटिकल वेक्टर, आइडेंटिकल वेक्टर, सेम वेक्टर या पैरेलल वेक्टर. एंड इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन एंगल इज 0 डिग्री. एंड बाय डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट a बार क्रॉस b बार mod of a mod of b bar sin theta. And theta is 0 because this vector is parallel 0. That's why it is 0. This is in case of perpendicular. Perpendicular में क्या आता है? यहाँ पर पैरेलल की केस इस्तेमाल होगी. a बार डॉट b बार पैरेलल अगेन थीटा 0. मगर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या रहता है? cos थीटा. एंड cos 0
is not 0, it is 1. That's why it is a square. तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ हो गए। क्वेश्चन और छोटा सा देख लेते हैं। नाउ सी पार्ट, तो इसको आप उतार लो, बस कुछ नहीं, आपको डॉट को क्रॉस करना है, आइडेंटिटी यूज करना है। अब अपन तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सी पार्ट। क्या था वो सी पार्ट में? डबल मतलब डेल स्क्वायर आर टू द पावर एन इंटू आर। ग्रेडियंट है, चिंता की बात नहीं, यहाँ पर ग्रेडियंट है। यहाँ पर तुमको ग्रेडियंट दिख रहा है, मगर ये एक्चुअली आगे जाके ये डाइवर्जेंस बनता है, डाइवर्स भी बनता है और ग्रेडियंट भी बनता है। यू सी हियर। तो मैंने आपको कहा था कि ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? ए बार डॉट ए बार, एनी क्वांटिटी स्क्वायर। भाई यहाँ पर भी क्या है? डेल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो आई राइट इट एज दिस इज नथिंग बट डेल डॉट डेल एंड r to the power n into r. This is the last problem. So r to the power n into r bar. Now you can write it is del dot. Del dot is maintained and this del operates on this. तो यहाँ पर होगा आपका del into r to the power n into r, like that. तो del r to the power n into r bar. Okay. तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, del स्क्वायर मतलब क्या? del dot del. तो डेल डॉट दिस एज डेल लाइक दिस। अब ये क्या है? ये दिस इज स्केलर एंड दिस इज वेक्टर। तो यहाँ पर डॉट एक ही बार रहेगा। अब यहाँ पर ये ग्रेडियंट हो गया, अब ये ग्रेडियंट हो गया, यहाँ पर क्या वेक्टर आ गया। यस, तो डेल डॉट, डेल स्क्वायर आर टू द पावर n into r bar and that is del dot del. You write del dot of this. So there is no dot, it is just a scalar. Now this is divergence. So del dot del, and it may here because this is vector. अब ये अगर वेक्टर है तो फिर ये यहाँ पर डॉट होना चाहिए, यहाँ पर डॉट, तो you write this is dot in this way, dot, because this is vector quantity, this is vector quantity, so you write del of del dot like this. Now see, okay, so del dot. Now first of all you solve this. तो del कौन सी? अभी अपन इसका आंसर लिखा है, अभी से लिखा है, अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ। इसका आंसर हमने अभी क्या लिखा था? n plus 3 r to the power n plus 3 r to the power, right? ये हमने लिखा था। कौन सा रिजल्ट? वेरी फर्स्ट रिजल्ट, डाइवर्जेंस ऑफ r to the power n into वेक्टर r bar n plus 3 into r to the power n ना। अब ये क्या हो गया? ये स्केलर है, तो यार थोड़ा सा कीप इन माइंड, ये डेल डॉट करके यहां लेके जाना, डेल डॉट, अदरवाइज यू विल डू मे रॉन्ग। तो डेल डॉट डेल बिकॉज दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, यदि ये r टू द पावर n ही होता तब क्या होगा? r टू द पावर n, ठीक है। हम अगर r टू द पावर n लेते और r टू द पावर n और वेक्टर r बार नहीं लेते, तब हम डेल डॉट पे लिखेंगे और r टू द पावर n नहीं लेते, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? डेल डॉट यहाँ रहेगा और यहाँ विदाउट डॉट। तो यू सी द आइडिया। तो डेल डॉट डेल ऑफ दिस, लाइक, तो डेल डॉट डेल r टू द पावर n, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा प्रॉब्लम को चेंज कर लो, उसको चेंज करने का इनटू r बार नहीं। नाउ दिस इज डाइवर्जेंस, सॉरी ग्रेडियंट, दिस इज ग्रेडियंट। डॉट तो रहेगा, पर ये स्केलर है तो यहाँ पर ग्रेडियंट होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या था? n r टू द पावर n minus 2 into r bar, और यहाँ पर करेगा डेल। प्रॉब्लम को ठीक कर लेने का, प्रॉब्लम को ठीक करने का, वो रॉन्ग है, सीधी बात है, रॉन्ग। देयर मे नॉट बी r bar, क्योंकि उस टाइप का वो फिर सेटिस्फाइड नहीं हो रही डेफिनेशन, क्योंकि डॉट एक है, तो ठीक है, डेल डॉट डेल। तो you can write del dot operate on this, simple, and this is scalar. Obviously you can apply. So this is as per results yesterday. Now अब dot आ गया, अब उसके पास में वेक्टर चाहिए, तो ये वेक्टर है, तो ये क्या है? स्केलर। अगेन आइडेंटिटी नंबर 1, del dot phi vector u, del dot phi vector u, because this is phi. This is phi. Yeah, you can take in n constant. So del dot
r to the power n minus 2 into r. दिस इज कांस्टेंट. यस, आप इसको काउंट नहीं करना है, यहाँ पर कांस्टेंट है बिकॉज इट इज इंटीजर. यू टेक आउट द डाइवर्जेंस. तो ये बाहर आ गया. चलो अब देखो फिर से ये क्या है आपका स्केलर फाई और ये वेक्टर, ये वेक्टर. तो विच इज इक्वल टू n. नाउ स्टार्ट. क्या था इसका फाई डाइवर्जेंस ऑफ u bar, phi divergence of u bar plus grad phi dot u bar. तो ये phi हो गया. तो r to the power n minus 2 phi scalar without bar into divergence of r bar. divergence of r bar मतलब u bar plus grad of r to the power n minus 2 grad of r to the power n minus 2 that is phi dot r bar dot r. ठीक है. तो ये फिर से आइडेंटिटी नंबर 1. बस अब लास्ट टू स्टेप. नाउ डाइवर्जेंस ऑफ r bar 3. so this is n. so divergence of r bar 3. so 3r to the power n minus 2 plus फिर से यहाँ पर क्या आ गया ग्रैड. फिर याद रखो ग्रैड ऑफ r to the power m. ग्रैड ऑफ r to the power m क्या रिजल्ट था? स्टैंडर्ड रिजल्ट था. मैंने कहा था बहुत बार इसका बोलूंगा. ग्रैड ऑफ r to the power m r to the power m minus 2 into r bar. तो इन प्लेस ऑफ m there is n minus 2 there is which is also integer, which is also constant. तो इन प्लेस ऑफ m there is n minus 2. तो इसको आप रफ में सॉल्व करो. तो therefore ग्रैड ऑफ r to the power n minus 2 you treated as m. तो m मतलब n minus 2 r to the power n minus 2 minus 2 into r bar, and that is n minus 2 r to the power minus 4 n minus 4 r bar. You write here. Okay, so n minus 2. So this is n minus 2 r to the power n minus 4 into r bar. This is the answer of this only. Dot r bar. Yes, this is dot r bar. You write like this bracket. This is and dot r bar, and then this bracket is complete. तो ये आप बाजू में लिख के रखेंगे कि डेल r to the power m. कल ही रिजल्ट इसका प्रूव किए. इन प्लेस ऑफ m there is n minus 2. This is still gradient. This is also gradient. M is integer, n minus 2 is also integer. And you solve in rough, you write here. Now again n. So 3r to the power n minus 2. Now plus. Now again this is scalar. m a bar dot b bar. That is m a bar dot b bar. So here n minus 2 r to the power n minus 4 into r bar dot r bar dot r, because this is whole scalar m. Now last n 3r to the power n plus n minus 2 r to the power n minus 4, and this is r bar dot r bar r square. Again keep in mind a bar dot a bar a square. Again simplify and 3r to the power n plus n minus 2 और r to the power n minus 4 into r square r to the power n minus 2. In this way this complete the answer, or you can simplify, you can taking r to the power n common here, and it is sufficient to solve this problem. So n minus 2 r to the power n minus 4 into r to the power this into r to the power. तो n minus 2, तो n मतलब आपका क्या है? n minus 2 minus n minus 4. Okay, and this is r square, and this is this complete the problem. Or you can simplify, you can take 1 by r square, and then you can taking r to the power n common. Again, otherwise this still complete the question. और क्या कर सकते हैं अगर आपको करना है तो 3r to the power n plus n minus 2 r to the power n upon r square. ये भी कर सकते हैं r to the power n upon r square. अब इसको आप कॉमन निकाल सकते हैं. ओके, तो पहले इतना लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके इतना
लिख लेंगे. Then simplification of this n. Now taking r to the power n common, that is 3 plus n minus 2 upon r square. This is also the answer. Okay, upon r.